Very good morning, class 11 biology. Dear students, we have completed up to these two chapters, chapter 1 and chapter 2, and we are going to start our chapter number 3, that is plant kingdom, right? So in this chapter number 3, we shall study about different kinds of plants. मतलब हमारे आसपास कितने सारे प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन. And in Dirang there are many trees which are cone shape, right? They are also kind of plant. Algae, in our walls, दीवारों पे हम दिखाएंगे आपको कि green layer आपको बरसात में दिखती है. That is also a kind of plant. If you have visited the river, there also you can find some green layers or green color small organisms. They are also a kind of plant, small plants, right? Mango, they are also plant, and many varieties of plants are there. So we shall study about different kinds of plants, their relationship, and main things we shall see how new plants are produced, means reproduction part, and it is connected with class 12th also. In class 12th we shall study in detail reproduction in flowering plants. तो एक तो बेसिक कैटेगरी ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स हैं और जो कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं हैं. So only angiosperm in class 9th you studied, they are flowering plant, and rest of the angiosperms all are non-flowering plants. Some are having seeds, some are not having seeds. Like that all we have studied something in class 9th, and whatever we studied in class 9th, that should be and that shall be elaborated in class 11th. Okay, so let's move to our main topics. They are very small plants, they are called as mosses. Even smaller than this plants are available in this earth. They are called as mosses. Getting? Okay. Then you see this is one more plant, right? This is non-flowering plant, means this plant never bear flowers, but these are flowering plants. Flowering plant, non-flowering plant. Its name is Vidya. In Hindi we say Vidya. In English it is Thuja. Thuja occidentalis. It's a scientific name. Okay, it is producing very good smell. It is gymnosperm, non-flowering plants, right? And they are angiosperms, means flowering plants. So about them all we shall study, right, one by one. Okay, so today we are starting this third chapter, that is plant kingdom. Clear? Okay. So from the starting itself, there are many kinds of plants, and if there are many kinds, then their proper classification is necessary or required. So first classification of plant was given by Linnaeus. Carolus Linnaeus, already I told you, he gave artificial system ऑफ क्लासिफिकेशन. उसमें क्या है कि सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स. इंटरनल फीचर से कोई लेना देना नहीं है. बाहर फ्लावर का कलर अगर रेड सबका है तो वो उसने एक जैसे क्लासीफाई कर दिया. इफ टॉल, सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं तो सबको ट्री कह दिया. तो दिस वॉज आर्टिफिशियल सिस्टम, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इंक्लूडेड ओनली एक्सटर्नल features, not the internal features. Then another system came, that is natural system. Natural system of classification of plant, it included external features as well as internal features.
इंटरनल फीचर्स मतलब कि सेल, क्रोमोसोम एट्सेट्रा, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल. एंड एक्सटर्नल इंटरनल बोथ व्हेन combined together to classify the plants, it was called as natural system. Using this natural system, two scientists, they classified the plants into 5 kingdom. Sorry, not 5 kingdom, 5 divisions. किंगडम तो ऑलरेडी प्लांट किंगडम है, उसको फर्दर. तो साइंटिस्ट कौन से थे देखते हैं, ये एग्ज़ाम में भी आता है. 2 साइंटिस्ट, वन इज दैट इज बेंथम और जॉर्ज बेंथम. And second was Joseph Dalton Hooker. शॉर्टली में हम डाल्टन एंड हुकर बोलते हैं. बेंथम एंड हुकर, सॉरी, ये दोनों का नाम शॉर्ट में लेकर के. बेंथम एंड हुकर, they classified the plant, okay, into 5 divisions. 5 divisions कौन से हैं, in class 9th you studied already. 5 divisions, the first is thallophytes, then bryophytes, pteridophytes, है ना, and gymnosperm, and last one is angiosperms. So these are the 5 categories of plants or 5 divisions of plants given by Bentham and Hooker. These are 2 botanists or scientists, those who are dealing with the botany or plant sciences. Clear? Okay. But नेचुरल क्लास सिस्टम में ही थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुए हैं. और करंट जो टेक्सोनॉमी है, करंट टेक्सोनॉमी मतलब प्रेजेंट टाइम पे है ना, कैसे करते हैं, ये तो बहुत पहले दिया था इनने, बेंथम एंड हुकर ने. करंट टेक्सोनॉमी, इसके बहुत सारे डीप फॉर्म है. करंट टेक्सोनॉमी में सबसे पहला आता है फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी. फाइलोजेनी का मतलब होता है किसी के फैमिली का रिलेशनशिप निकालना. मतलब इफ़ देर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट्स अमंग देम, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी. और उसके हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. एंसेस्टर्स का जो रिलेशन है, मतलब पूर्वजों का, उनके पुराने इंडिविजुअल्स का जो रिलेशन है आपस में, उससे कंपेयर करके हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक. ओके. सेकेंड वे इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड कंपैरिजन ऑफ ऑल विजिबल और काउंटेबल करेक्टर्स. ये इजी हो जाता है, कंप्यूटर में सब चीज़ें फीड कर दें, then computer automatically will tell you how much anything is matching with whom, किस प्लांट से किसका ज़्यादा मैच हो रहा है. तो उस मैचिंग के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. देन थर्ड इज ऑल्सो यूज्ड, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी.
साइटोटेक्सोनॉमी मतलब नाम से ही क्लियर है, सेल का स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, और सेल में फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स, उसका नंबर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइट, एंड सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है ना, क्रोमोसोम किसी में ज़्यादा किसी में कम, न्यूक्लियस में किसी में बिग है किसी में स्मॉल है, किसी में सेंटर में है किसी में साइड में है, लाइक दैट इट इज़ कॉल्ड एज साइटोटेक्सोनॉमी. एंड फोर्थ इज कीमोटेक्सोनॉमी. कीमोटेक्सोनॉमी नाम से पता चल रहा है कि स्टडी केमिकल कंपोजिशन. प्लांट्स जिसका आप कंपेयर करना चाहते हैं उसमें जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसका स्टडी करके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं. जैसे पहले फंजाई और प्लांट एक ही जगह थे, बट प्लांट का सेल वॉल इट वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट्स अ केमिकल, and fungi cell wall was made up of chitin, that's a different chemical. So here what they used chemotaxonomy, means अगर कन्फ्यूज़न है किसी दो प्लांट में कि लग रहा है दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तो केमिकल कंपोजिशन पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि वो सेम कैटेगरी में है कि नहीं, राइट. जैसे रेडिश देखो आप, रेडिश है ना, और कैरेट दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों ही अंडरग्राउंड है रेडिश, और शेप भी दोनों का लगभग सेम है, लीव्स वगैरह सेम दिखते हैं, लेकिन कलर दोनों में अलग है. तो इस कलर क्यों है? फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ कैरेट, तो कैरेट में है कैरोटीन, इट्स अ केमिकल, ये विटामिन ए का एक प्रिकर्सर है, इसमें कैरोटीन नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ के हो गए. सो व्हाट वी यूज्ड कीमोटेक्सोनॉमी. ओके, तो आपको इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है, ये 5 डिविजन्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. हु डिवाइडेड दिस? बेंथम एंड हुकर. ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स. ठीक है. करेंटली botanists or the scientists, those who are dealing with the plants, they are using these approaches to classify the plants. For example, phylogenetic taxonomy means they are tracing the relationship of the ancestors of the plants, कि उनके पूर्वज जो है उनमें क्या relationship है, then they classify. दो प्लांट्स अगर एक ही ग्रुप में है, इसका मतलब ये है कि उनके एंसेस्टर बहुत पास पास में थे, कॉमन थे. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये इजी कर दिया है क्लासिफिकेशन को. मोस्ट ऑफ द डेटा दे आर फेड इन कंप्यूटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी प्लांट्स आर क्लासिफाइड. साइटोटैक्सोनॉमी यूज ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और सेल स्ट्रक्चर, एंड कीमोटैक्सोनॉमी मीन्स to find out the similarity or dissimilarity on the basis of the chemicals present in them. Okay dear, so it was the introduction of this chapter. Tomorrow onwards we shall see these. इनको आप एल्गी भी कह सकते हैं, सेलोफाइटा को, है ना. ठीक. ओके, टेक केयर.